السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فقال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة۔ محترم علماء کرام، صدر ذی وقار، نوجوانان، بزرگان، نونہالان، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک زمین و آسمان کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بعد کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس و پاکیزہ جماعت پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر، شاف روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کی دل کی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔
قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش بھی کرتا ہوں، التماس بھی کرتا ہوں کہ جہاں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ کے مبارک نام کا تذکرہ ہو، اپنے زبان سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرے۔ یہی نبی سے محبت کی دلیل ہے، یہی نبی سے عقیدت کی دلیل ہے، اور یہ امر وجوب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا نام جہاں آ جائے وہاں پر ہمارے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کا عنوان جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا ہوں ابھی، بہرحال ناظم صاحب نے عنوان کی وضاحت کر دی ہے، وہ عنوان ہے تجارت کے اصول۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تجارت کے اصول اور اس کے ضوابط سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وسائل اور ذرائع سے محفوظ رکھے جو وسائل اور ذرائع ہمیں حرام تک پہنچا دیتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ہر انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انہی تینوں بنیادی ضرورتوں میں سے پہلی ضرورت خوراک ہے، دوسری ضرورت لباس ہے، تیسری ضرورت مکان ہے۔ ان تینوں ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے حصول کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر مال کے ان تینوں چیزوں کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ مال ہر فرد اور جماعت کے لیے ضروری ہے، مال ہر فرد اور جماعت کے لیے ضروری ہے۔ جس قوم کی اکثریت مالی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے وہ قوم عالم اقوام پہ اپنا نام اپنا مقام بناتی ہے۔ جو قوم مالی اعتبار سے بیکار اور ناکارہ ہوتی ہے وہ قوم مفلوج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مال کے حصول کے لیے، مال کے حاصل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر وسائل کے انسان مال حاصل نہیں کر سکتا ہے، تجارت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب وہ چاہے وسائل منقولات کی شکل میں ہو یا عقارات کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، شریعت اسلامیہ نے وسائل کو اپنانے کی ترغیب دی ہے اور وسائل کو منجمد رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اگر نگاہ ڈالیں، نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، چاہے وہ مکی زندگی ہو یا وہ مدنی زندگی ہو، جگہ جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ میتۃ یجرونها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا جو بکری مردار ہو چکی تھی۔ یجرونها، صحابہ کرام اس بکری کو کھینچ کر کے میدان کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ اس مردار بکری کو کوڑے اور کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس بکری کو تم کھینچ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ اس بکری کے چمڑے کو آپ نے کیوں نہیں نکال لیا؟ یتنا سننا تھا۔ جو افراد بکری کو کھینچ کر مری ہوئی بکری کو لے کر کے جا رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ بکری مردار ہو چکی ہے، یہ بکری مر چکی ہے۔ یعنی اس قول سے پتہ یہ چلتا تھا کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو جانور مر جائے، جو بکری یا اونٹ یا گھوڑے مر جائے، ان کے کسی بھی اعضاء سے کسی بھی پارٹ سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نظریے کی تردید کی
और कहा कि हल्ला इंतफातुम बिजिल्दिहा हल्ला अखदतुम बिइहादिहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस मरी हुई बकरी की खाल और इसके चमड़े से तुमने फायदा क्यों नहीं उठा लिया, इस्तेमाल में क्यों नहीं तुम लाए? कहा अल्लाह के रसूल इन्नहा मैता, ये बकरी मर चुकी है, ये मरी हुई बकरी के चमड़े हम क्या करें? रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नमा हरुमा अक्लुहा व फी रिवायतिन हुर्रिमा अक्लुहा, इस बकरी का गोश्त खाना हराम है, इसके चमड़े से फायदा उठाना ये हराम नहीं है, बल्कि मरे हुए जानवर के चमड़े से फायदा उठाना ये जायज और दुरुस्त है, चाहे वो गोश्त खाने वाले जानवर हो या वो ऐसे जानवर हो जिनका गोश्त ना खाया जाता हो, उन जानवरों के चमड़े का दिबागत के बाद इस्तेमाल करना ये जायज और दुरुस्त है। यहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला माल कमाने का एक तरीका बताया कि अगर जो मरी हुई बकरी है उसके चमड़े से अगर तुमने फायदा उठा लिया होता तो क्या अच्छी बात थी, और उस बकरी मरे हुए बकरी के जिल्द से फायदा उठाना जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं मन अहिया अर्दन मैता, कि जिसने बंजर जमीन को आबाद कर लिया, बंजर जमीन पर कब्जा जमा लिया, फहिया लहू, वो जमीन उसकी मिल्कियत में आ जाती है, वो उस बंजर जमीन का मालिक बन जाता है। जो जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, सरकारी जमीनें हैं, हाकिम वक्त की जमीनें हैं, जो किसी के कब्जे में नहीं है बल्कि उसका मालिक जो हाकिम वक्त होता है वो होता है, उन जमीनों को अगर कोई आबाद कर दे, पेड़ लगा करके उसको घेर करके खेतियां लगा करके उगा करके अगर कोई बंजर जमीन को आबाद कर लेता है तो वो जमीन उसकी मिल्कियत हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर बंजर जमीन से फायदा उठाने के बारे में हुक्म दिया। अल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर एक जमीन से हुआ, बिल्कुल वो जमीन खाली पड़ी थी। हजरत उमर ने अपने कारिंदों को कहा, जाकर के दरियाफ्त करो ये खाली जमीन किसकी पड़ी हुई है, न इस पे सब्जियां उगाई जा रही हैं, न खेती बाड़ी की जा रही है, न पेड़ पौधे लगाए हैं, ये खाली जमीन, और वो भी इस्लामी ममलकत के अंदर पड़ी रहे। पता करो मदीना में ये किसकी जमीन है। दरियाफ्त किया जाता है, पता चलता है कि ये जमीन वो जमीन सैयदना बिलाल की थी। हजरत उमर ने बिलाल को बुलाया, कहा है बिलाल क्या माजरा है, ये जमीन खाली क्यों छोड़े हुए हो? अगर तुम्हारे पास इस जमीन पर पौधे लगाने की ताकत नहीं है, खेतियां लगाने की ताकत नहीं है, तो जितनी ताकत और इस्तिताअत तुम्हारे अंदर है उतनी खेतियां ले लो, और जो खेतियां तुम नहीं कर सकते हो हुकूमत को दे दो, मेरे हाथ में दे दो, मैं किसी गरीब को दूंगा, वो इस पर खेतियां करेगा, पौधे उगाएगा, सब्जियां उगाएगा, अनाज उगाएगा, तुम्हारा नहीं तो कम से कम इंसानियत का फायदा होगा, किसी गरीब का पेट भर जाएगा। हमारे यहां तो मामला ये है, कई बिगहे जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन मुसलमान को यह तौफीक नहीं होती है कि मेरा पड़ोसी गरीब है, वो भूखे मर रहा है, एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम वो उपवास करता है, खाना नहीं खाता है, पड़ोसी को रब ने नवाज दिया है, कई बिगहे की शक्ल में जमीनें हैं, लेकिन उसको तौफीक नहीं होती है कि अपनी जमीन को अपने भाई को दे दूं, मेरा भाई खेतियां उगाएगा, अनाज लगाएगा, उसके बच्चे खाएंगे, अपने पेट को भरेगा, और उस पेट भरने के बाद हो सकता है तुम्हारे लिए दुआ करे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार दे, आखिरत भी संवार दे। और साथ ही साथ पता यह चला कि जगह जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा वसाइल को, जहां से माल हासिल किया जाता है, जिन तरीके से नफा हासिल किया जाता है, उसकी तरफ तरगीब दिलाई है और फायदा उठाने का हुक्म दिया है। और उन्हीं फायदा उठाने के उसूलों में से एक असल है तिजारत, जो सबसे अशरफ और आला वसीला है, और माल कमाने के जो जराए हैं उन जरायों में से हमें हलाल जरिया इस्तेमाल करना है, हलाल तरीका इख्तियार करना है, हराम तरीके पे चल करके, हराम रास्ते पे चल करके हमें अपनी तिजारत को फरोग नहीं देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैआ,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिजारत को हलाल करार दिया है। वह हर्रम रिबा, और सूद को, इंटरेस्ट को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा हमेश के लिए हराम करार दिया है। अगर इस पे हम और आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जो बात कही, इन अहल्लल्लाहुल बैआ, तमाम किस्म की तिजारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल करार दिया, सिवाय उन तिजारत और बिजनेस के जिसके हुर्मत की दलील अल्लाह के कलाम में मौजूद हो, जिसकी हुर्मत की दलील नबी की हदीसों में मौजूद हो, या जिसके हुर्मत की दलील उलमा ने नुसूस से इस्तिंबात किए, नुसूस से इल्लत इस्तिंबात करने के बाद और उसके मुआफिक में जितनी चीजें, उसकी मिसलियत में जितनी चीजें आती हैं, उस पर जो हुक्म हुर्मत का लगाया है, उसके अलावा तमाम किस्म की तिजारत शरीयत इस्लामिया के अंदर हलाल और जायज है। और रही बात सूद की, शरीयत ने सूद को मुतलक तौर पे हराम करार दिया, चाहे सूद 1% हो या 5% हो या 50% हो या 100% हो। मेरे रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूद को, रिबा को, इंटरेस्ट को हराम और नाजायज करार दिया। अहले इल्म बैठे हुए हैं, अहले इल्म जानते हैं, यह उसूल का कायदा है कि जब किसी मुफरद लफ्ज पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए तो वो मुफरद लफ्ज उमूमियत का फायदा देता है, यानी इंटरेस्ट की जितनी भी शक्लें हैं सब के सब हराम और सब के सब नाजायज है। इससे हमें और आपको बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, अल्लाह पाक ही चीजों को कबूल फरमाता है, नापाक और नजिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पाक माल को किस तरीके से कबूल करता है, आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बुखारी किताबु ज़कात के हवाले से कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यिब ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिबा यतक़ब्बलुहा बियमीनिही सुम्मा युरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलूवहु हत्ता तकूना मिसलल जबली, अख़रजहुल बुखारी फी किताबि ज़कात, बुखारी शरीफ की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, पाक चीजों को कबूल फरमाता है, और आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में एक खजूर का टुकड़ा या एक खजूर की गुठली जो वो खर्च कर देता है अपने हलाल कमाई से, अपने हलाल कमाई से अगर बंदा 1 रुपया खर्च कर देता है, यतक़ब्बलुहा बियमीनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हलाल कमाई को अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसकी परवरिश करता है, हत्ता तकूना मिसलल जबली। कैसे परवरिश करता है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दिया, कहा जैसे तुम में का कोई आदमी अपने बछड़े की परवरिश करता हो, अपने गाय के बच्चे की परवरिश करता हो, या बकरी के बच्चे की परवरिश करता हो, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हलाल कमाई जो तुमने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में दिया है, मेरा रब दाहिने हाथ में लेकर के उसकी परवरिश करता है, यहां तक कि जब आदमी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, वफात पाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिरी देगा, अल्लाह के यहां पहुंचेगा तो 1 रुपया जो हलाल कमाई से उसने खर्चा किया है, हत्ता तकूना मिसलल जबली, 1 रुपया सवाब के अंदर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लिया होगा। ये बरकत है उस हलाल कमाई की, जिस हलाल कमाई में से उसने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दिया, 100 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दिया, 1000, 10,000, 50 अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अकल हो या अक्सर हो, कम हो या ज्यादा हो, हलाल कमाई का हो, मेरा रब दाहिने हाथ में लेकर के उसकी परवरिश करता है, यहां तक कि जब आदमी दुनिया से रुखसत होगा तो वो सवाब में पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लिया होगा। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को वही करने का हुक्म दिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों को करने का हुक्म दिया। रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कज़िया कुल्लिया दिया, एक कायदा दिया। वो कायदा यह है
या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि ऐ मेरे प्यारे रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति, हलाल रोजियां खाना, वअमलू सालिहा, और अच्छे अच्छे काम करना, और जो तुम करोगे उसकी खबर मुझे है, जो तुम भी काम अंजाम दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बाखबर होगा। और वही हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों के बाद अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को दिया। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ऐ मोमिनो तुम हलाल रोजियां खाओ, जो पाकीज़ा रोजियां हमने तुम्हें अता की है, पाकीज़ा जराए से, हलाल जराए से रोजी कमा करके खाना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा किया, एक आदमी जो सफर से आया हुआ है। एक आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी का जिक्र है, सुम्मा ज़करा रजुला, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा किया, अशअसा, जो हालत सफर में है, परागंदा हालत है, उसके चेहरे और तनो बदन पर गर्दो गुबार अटी हुई है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आजिज़ी और इंकिसारी की हालत में अपने दस्त को फजाओं में बुलंद करके परवरदिगार से दुआ करता है, या रब्बी, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ये हाथ फैला करके रब से दुआ करता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं रब उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है। अगर देखा जाए तो इजाबत दुआ की जितनी सिफात दुआ के अंदर होनी चाहिए, सारी सिफात बंदे के अंदर पाई जा रही है। पहली सिफत यह है कि बंदा सफर में है, जब इंसान हालत सफर में होता है उसकी दुआएं ज्यादा कबूल होती है, उसकी दुआएं रब के यहां मकबूल होती है, बंदा हालत सफर में है। साथ ही साथ उसके आजिज़ी और इंकिसारी का आलम यह है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल परागंदा है, चेहरों पे धूल और गर्दो गुबार के आसार जाहिर हो रहे हैं, तवाज़ु और इंकिसारी का ये आलम है। और साथ ही साथ तीसरी सिफत ये पाई जा रही है कि रब से दुआ मांग रहा है, रब की रुबूबियत का हवाला दे करके, या रब्बी, रब की रुबूबियत के हवाले से वो दुआ मांग रहा है। और जो रब की रुबूबियत के हवाले से दुआ मांग ले, अल्लाह उसकी दुआ को रायगा नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है। जो रब की रुबूबियत के हवाले से अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगे, रब उसकी दुआ को मरदूद नहीं ठहराता है, उसकी दुआ को रद्द अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं करता है, उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। आलम यह है, इब्लीस हजरत आदम से खता हुई, गलती हुई, तो हजरत आदम ने रब से दुआ मांगी, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश तलब किया मेरे रब से, तो रब की रुबूबियत का हवाला दे करके कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि परवरदिगारा हमने अपने आप पर जुल्म किया है। रब की रुबूबियत का हवाला दे करके आदम ने दुआ मांगी, तो अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल किया। आदम तो बड़ी दूर की बात है, इब्लीस जो अल्लाह का नाफरमान है, जिसने आदम के सजदे से इनकार किया, मेरे रब से जब उसने रुबूबियत का हवाला दे करके दुआ मांगी और कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, रब की रुबूबियत का हवाला दे करके इब्लीस ने दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा जा तुझे कयामत तक मैं मोहलत देता हूं। ये आलम है रुबूबियत का हवाला। रुबूबियत से अगर कोई आदमी रुबूबियत का हवाला दे करके दुआ मांगता है, रुबूबियत का हवाला और रुबूबियत के वसीले से वो दुआ मांग रहा है, फिर भी उसकी दुआ नहीं कबूल हो रही है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया व मतअमुहु हराम, वाव यहां पे हालिया है। उसकी हालत यह है, उसके पेट के अंदर जो ग़िज़ा है वो भी हराम है, जो खा करके आया है वो भी हराम निवाला है, और जो उसके बदन और तन पे कपड़ा नजर आ रहा है वो कपड़ा भी हराम कमाई का है। उसने जो पानी पिया है, जो मशरूब इस्तेमाल किया है, वो पिया हुआ पानी जो उसके बदन और उसके रगों में, उसके नसों में दौड़ रहा है, वो पानी भी हराम का है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो मेरा परवरदिगार उसकी दुआ को किस तरह से कबूल कर सकता? ये हलाल कमाई
और हराम कमाई की मजम्मत है। जहां पे हलाल की फजीलत है वहीं पे हराम की मजम्मत है कि अगर कोई आदमी हराम खाता है और मस्जिद में आकर के अपने जबीन को खम करता है, अपने पेशानी को खून आलूद करता है, अल्लाह की कसम जब तक तन बदन जिस्म के अंदर हराम निवाला है, हराम खून नसों में दौड़ रहा होगा, तब तक रब तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी नमाजें अल्लाह के यहां मकबूल नहीं होगी, तुम्हारे रोजे सदकातो खैरात मकबूल नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है कि हम तिजारत के मैदान में हलाल वसीले का इख्तियार करें, हलाल तरीके से हम रोजी कमाएं, हलाल तरीके से कारोबार करें। जो बरकत हलाल चीजों में है वो बरकत हराम में नहीं है। हलाल तरीका इख्तियार करोगे, दुनिया के अंदर सरबुलंद रहोगे और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदियों पे तुम्हें रखेगा। तिजारत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद पसंद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल कसबी अतयब, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे पाकीज़ा कमाई कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमलुर रजुल बियदिही, आदमी का अपने हाथ से कारोबार करना, अपने हाथ के जरिया मेहनत करना, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है और ये सबसे पाकीज़ा कमाई है। वो कुल्लु बैइन मबरूर, और हर वो तिजारत और बिजनेस कारोबार जिसके अंदर हराम की मिलावट ना हो, उसूल शरा के मुआफिक में हो, ऐसी तिजारत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़ी महबूब है। और ऐसी तिजारत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। आदमी पैसा और रुपया कमाता है, बहुत सारे वसाइल हैं, कोई तिजारत करके कमाता है, कोई मजदूरी करके कमाता है, कोई कुछ और करके कमाता है, मेहनत और मजदूरी करके आदमी कमाता है, बहुत सारे वसाइल हैं और सारी चीजें शरीयत इस्लामिया के अंदर मेरे प्यारों जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी का अगर मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ी तो अम्मा दाई हलीमा के यहां रह करके बच्चों के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बकरियां भी चराई है। जब हालात ने तकाजा किया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रह करके कुरैश की बकरियों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चराया है और तिजारत के तरीके को सीखने के लिए अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफर किया है। जब जरूरत पेश आई है, आपने जरूरत महसूस किया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुजारबत पर हजरत खदीजा के माल को उनके गुलाम मैसरा के साथ लेकर के मुल्क शाम का भी सफर किया है। मुजारिबत के माने होते हैं पैसा किसी और का हो और आप उस पर मेहनत करें और परसेंटेज तय हो जाए कि आप 40% लेंगे, 50% लेंगे, 50-50 पे तिजारत करेंगे। अल्लाह के रसूल ने खतीजा के माल के साथ, माल खतीजा का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत थी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के बाब में अमीन, तिजारत के बाब में दियानतदार नजर आते हैं। हजरत मैसरा का बयान है, मुल्क शाम से जब लौटते हैं, हजरत खदीजा के पास पहुंचते हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आला किरदार का तस्करा करते हैं, आला अखलाक का तस्करा करते हैं, नबी के अमानत का तस्करा करते हैं, दियानत का तस्करा करते हैं, रास्तबाजी का तस्करा करते हैं, खुशमुआमलगी का तस्करा करते हैं। ये अल्लाह के रसूल के औसाफ हजरत खदीजा को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि हजरत खदीजा ने दिल के अंदर ठान लिया कि अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी उर्वा अल बारिकी को 1 दीनार दिया और कहा जाओ मेरे लिए कुर्बानी का जानवर खरीद के ले आओ, 1 बकरी खरीद के ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दीनार किसको दिया? उर्वा अल बारिकी को दिया। कहते हैं मैं मार्केट गया तो मैंने 1 दीनार में 2 बकरी खरीद ली। नबी ने हुक्म कितना दिया था? 1 बकरी खरीदने का। उन्होंने 1 दीनार में सस्ती बकरी मिल गई, 1 दीनार में 2 बकरी खरीद ली। लेकर के आने लगे
तो रास्ते में एक ने कहा मैं आपकी ये बकरी खरीदना चाहता हूं। उर्वा अल-बारकी ने 1 दीनार में एक बकरी को बेच दिया और साथ में जो नबी ने दीनार दिया था वो दीनार और उसके साथ एक बकरी लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने तुमको एक बकरी खरीदने के लिए 1 दीनार दिया था, तुम बकरी भी ले आए और दीनार भी बच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उर्वा अल-बारकी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल मैंने 1 दीनार में 2 बकरी खरीदी और रास्ते में आ रहा था एक गाहक मिल गया, दूसरी बकरी 1 दीनार में मैंने बेच दिया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया और कहा बारकल्लाहु फी सफकत यमीनिक, ऐ उर्वा अल-बारकी अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत दे। नबी के दुआओं का असर यह हुआ कि उर्वा अल-बारकी अपने माल को अपने सामान को कूफा ले जाकर के बेचते थे और चंद ही दिन गुजरे थे कि कूफा के मालदारों में सबसे नंबर 1 पे अगर किसी का नाम आता था तो उर्वा अल-बारकी का आता था। क्यों? क्योंकि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनकी तिजारत में बरकत की दुआ किया था और साथ ही साथ उलमा ने कहा है कि यहां पे बारकल्लाहु फी सफकत यमीनिक ये दुआ उमूमियत के लिए भी है, यानी मानवी तौर पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारे ताजिरों के लिए बरकत की दुआ की है। यही वजह है कि एक आदमी जो ठेले पे फल लगा करके और छोटी छोटी चीजें बेचता है अल्लाह की कसम मुलाजमत करने वालों से ज्यादा कमा लेता है। वजह यह है कि तिजारत में मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ की है और वह तिजारत जो सुबह के अंदर अंजाम दी जाए उस तिजारत के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ की है। जहां पे ताजिरों की फजीलत है वहीं पे तिजारत के कुछ उसूल और जवाबित हैं। वक्त इजाजत इतनी नहीं देता, मैं जल्दी जल्दी अपनी बातों को आपके सामने रखता चलूं कि तिजारत के कुछ उसूल और जवाबित हैं। उन्हीं उसूल और जवाबित में से एक असल यह है कि तिजारत के बाब में आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। जिस तरह इबादत के बाब में तकवा की जरूरत पड़ती है ऐसे ही मुआमलात में तकवा की जरूरत है। मुआमलात में अगर इंसान अल्लाह का तकवा ना इख्तियार करे तो हलाल और हराम के दरमियान तमीज नहीं कर पाएगा, जायज और नाजायज के दरमियान तमीज नहीं कर पाएगा, शैतानी रास्ता और रहमानी रास्ते के दरमियान तमीज नहीं कर पाएगा। इस वजह से तिजारत के बाब में तकवा की बड़ी जरूरत है और जो तिजारत के बाब में तकवा इख्तियार नहीं करता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन नाफरमानों के साथ उठाएगा। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अन रिफाअता अन अबीह क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुकरतन फनादाहुम फलम्मा रफऊ अबसारहुम व मद्दू आनाकहुम फक़ालत तुज्जारु युबअसून यौमल क़ियामत फुज्जारा इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदक़ा अख़रजहु दारमी व सहाहुल अलबानी। दारमी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने उस हदीस को सही कहा है। हजरत रिफा अपने वालिद मालिक से रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह सुबह निकले और कुछ रिवायतों के अंदर है कि जन्नतुल बकी की तरफ, बकीए गरकत की तरफ निकले। अल्लाह के रसूल ने ताजिरों को बुलाया कि ऐ ताजिरों की जमात, इतना सुनना था जितने बिजनेसमैन कारोबारी थे अपनी निगाहों को उठा करके देखने लगे, गर्दनों को उठा उठा करके देखने लगे माजरा क्या है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सुबह का टाइम है, तिजारत का वक्त है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह निदा दे रहे हैं। सारे लोग जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अब तुज्जारु युहशरून यौमल क़ियामत फुज्जारा, कि ऐ ताजिरों की जमात सुन लो, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अपने नाफरमान बंदों के साथ उठाएगा, अपने गुनहगार बंदों के साथ उठाएगा, सिवाय उन ताजिरों के जो अपने तिजारत में अल्लाह का तकवा इख्तियार करते होंगे, सिवाय उन ताजिरों के जो ताजिर नेकी और हलाल का रास्ता इख्तियार करते होंगे, अपनी तिजारत के अंदर सच बोलते होंगे, जो तजारत के अंदर झूठ बोलते होंगे, खियानत से काम लेते होंगे, दगाबाजी से काम लेते होंगे, बददियानती से काम लेते होंगे, अल्लाह के तकवा से दूर रहते होंगे। ऐसे लोगों का हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमानों के साथ करेगा, गुनहगारों के साथ करेगा। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुत्तकी होंगे उनका हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के
साथ करेगा, रसूलों के साथ करेगा, शहीदों के साथ करेगा। प्यारे रसूल की ये प्यारी हदीस बतला रही है कि तकवा के बाब में, तिजारत के बाब में तकवा की उतनी ही जरूरत है जितनी तकवा की जरूरत इबादत के बाब में है। इबादत के बाब में जैसे तकवा मतलूब है, ऐसे ही तिजारत के बाब में भी तकवा मतलूब है। और तकवा को इंसान मामूली समझता है। इतने में कौन लोग होंगे जो कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बत नहीं चाहते हो? कौन ऐसा बदनसीब है जो ये नहीं चाहेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं करीबी बनकर के रहूं। हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि कयामत के दिन जब हम दुनिया, कयामत के दिन जब हमारी आंखें खुले तो हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखे, नबी की मईयत नसीब हो जाए, नबी की कुर्बत नसीब हो जाए। और ये कुर्बत किनको नसीब होगी? आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते चले। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा बअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यमन खरज माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसीह व मुआज़ राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहता राहिलतिही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ असा अल्ला तल्क़ानी बाद आमी हादा औ लअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदी औ बिक़ब्री फ़बका मुआज़ जशन लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इल्तफ़त बिवजहिही नहवल मदीना फ़क़ाल इन्ना औला अन्नास बिल मुत्तक़ून यौमल क़ियामा हैसु कानू व मन कानू अख़रजु अहमद व सहहहु शुअैब अर्नाऊत। मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे यमन की तरफ भेज रहे थे तो अल्लाह के रसूल भी मेरे साथ निकले, वसीयत करते हुए, नसीहत करते हुए। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवारी पे सवार हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के नीचे चल रहे हैं। तवाज़ो का ये आलम है कि नबी का एक अदना शेदाई वो सवारी पे सवार है और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरदार अंबिया जमीन पे चल रहे हैं, सवारी के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। ये नबी के तवाज़ो का आलम था। नबी से बड़ा कोई आदमी मुतवाज़े नहीं हो सकता है। वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, मुआज़ को फरमा रहे हैं कि ऐ मुआज़, मुमकिन है कि जब तुम सरजमीने यमन से लौट करके आओ तो अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात ना हो। ऐ मुआज़, हो सकता है तुम्हारा गुजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मेरी कब्र से तुम्हारा गुजर हो या तुम्हारा गुजर मेरी कब्र या मेरी मस्जिद से हो। इतना सुनना था। हजरत मुआज़ रोने लगे, आंखें अश्बार हो गई, आंखें आंसू बहाने लगी। प्यारे रसूल ने क्या बातें कह रहे हैं? नबी के इशारे को मुआज़ ने भाप लिया कि अब नबी दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रहेंगे। रोने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ को रोता देख करके कहा, अपने रुखे अनवर को मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ किया और कहा इन्ना औला अन्नास बिल मुत्तक़ूना यौमल क़ियामा हैसु कानू व मन कानू। ऐ मुआज़, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कयामत के दिन जो अल्लाह के मुत्तकी बंदे होंगे वो मेरे करीब होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में हो, किसी कोने में हो, चाहे कोई बड़ा हो, छोटे खानदान का हो, बड़े खानदान का हो। अगर उसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है तो उसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कयामत की मईयत और कुर्बत नसीब होगी। ये तकवा की अहमियत है, ये तकवा की फजीलत है। तिजारत के बाद में दूसरा उसूल ये है कि आदमी हमेशा सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि अगर आदमी तिजारत के अंदर झूठ बोलता है तो गोया कि उसके अंदर मुनाफिकों की एक सिफत पाई जा रही है। प्यारे रसूल ने बयान फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलात इज़ा हद्दस कदबा व इज़ा तुमिना खाना व इज़ा वादा अखलफा व फी रिवायतिन इज़ा खासमा फजरा। मुनाफिक की अलामत यह है, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अमानत रख दी जाए उसके पास तो अमानत के अंदर खियानत करेगा। ये मुनाफिकों की सिफत है। जब लड़ाई झगड़ा करेगा तो मां बहन की गाली देगा। ये चार सिफात अगर किसी के अंदर पाई जाती हो तो ऐसा आदमी शरीयत के अंदर पक्का मुनाफिक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं, इय्याकुम वल कज़िब फइन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार व मा यज़ालु रजुलु यकज़िब व यतहर्रल कज़िब हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। जब आदमी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
कि ऐ मेरे प्यारो झूठ से बचो, झूठ आपको गुनाह की तरफ ले जाएगा और गुनाह आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। आदमी बराबर झूठ बोलते रहता है, चाहे बातचीत में हो, चाहे तिजारत में हो या दीगर मुआमलात में हो, वो बराबर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव के साथ झूठ बोलते रहता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां उसका नाम झूठों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। और जो आदमी तिजारत के बाब में सच बोलता है, झूठ से काम नहीं लेता है, 420 नहीं करता है, ऐसे आदमी को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। उबादा इब्न सामित की बड़ी मशहूर रिवायत है, फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इज़मनूली सित्तन अदमलकुमुल जन्ना उसदुकू इदा हद्दस्तुम वअफू इदा वअत्तुम वअद्दू इदा तुमिनतुम और वहफजू फुरूदकुम वगुद्दू अबसारकुम वकुफू ऐदियकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दे दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत का कंफर्म टिकट दे दूंगा, आरएसी नहीं, वेटिंग टिकट नहीं, तुम 6 चीजों की जमानत दे दो। प्यारे रसूल फरमा रहे मैं तुम्हें जन्नत का टिकट देता हूं, जन्नत का सर्टिफिकेट देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। जब बात करो तो सच बोला करो, वादा करो तो वादा पूरा करा करो, अमानत रख दी जाए तो उसके अंदर खयानत से काम मत लो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लिया करो, चलो तो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो और जुल्म से अपने हाथ को रोक लो। ये 6 काम तुम कर लो, प्यारे रसूल फरमाते मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। और तिजारत के बाब में जो सच बोलता है, आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक और हदीस सुनते चले। अनबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा अख़रजहुल मुंज़िरी फ़ी तरग़ीब व तरहीब व सहाहुल अलबानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चा और अमानतदार ताजिर का हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के साथ करेगा, रसूलों के साथ करेगा, शहीदों के साथ करेगा। इससे बढ़कर के और इंसान के लिए फजीलत की क्या बात हो सकती है कि अगर कोई ताजिर कारोबारी तिजारत के मैदान में सच बोलता हो, झूठ के करीब ना जाता हो, अमानत में खयानत ना करता हो, ऐसा आदमी, ऐसा ताजिर, ऐसा कारोबारी कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, रसूलों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, शहीदों के साथ में होगा। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको इमाम मुंज़िरी ने अपनी किताब अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर नकल किया है और मुहद्दिस आज़म अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको सही तरग़ीब व तरहीब के अंदर सही कहा है। इसी तरह से तिजारत के उसूलों में से एक असल ये है कि आदमी तिजारत के बाब में खयानत से काम ना ले, और खयानत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा नापसंद है। खयानत चाहे एक सुई की हो या खयानत किसी हाथी की हो, छोटी चीज में खयानत हो या बड़ी चीज के अंदर खयानत हो, खयानत अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत नापसंद करता है। खयानत ये मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है। प्यारे रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, वो आदमी कामिल मोमिन ही नहीं है जिसके यहां अमानतदारी का मुजाहिरा ना हो। जो अमानत में खियानत करता है, ऐसा आदमी शरीयत में मोमिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाइनों के हवाले से बेशुमार रिवायतें नकल की है। मैदान जंग के अंदर मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल जब गज़वे खैबर से लौट रहे थे, मदीना के करीब एक वादी में पड़ाव डाल दिया। इतने में एक मजहूल तीर आकर के नबी का जो कजावा उतार रहा था, यह जानवर से जो सामान उतार रहा था, उसको आकर के लग गया। बाज रिवायतों के अंदर है कि उसका नाम किरकिरा था। क्या नाम था उसका? किरकिरा नाम था, जो हदीसे किरकिरा के नाम से मशहूर है। और कुछ रिवायतों के अंदर मिदाम का लफ्ज आया हुआ है। मिदाम थे, हालांकि दोनों अलग अलग, दोनों के किस्से भी हदीसों के अंदर अलग अलग हैं। शहीद हो गए, मिदाम शहीद हो गए। लोगों ने आकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि मिदाम शहीद हो गए।
اللہ کے رسول نے کہا کلا والذی نفسی بیدہی انی رأیتہ فی النار، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، تم شہید کی بات کر رہے ہو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، تم اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہو۔ لوگوں نے کہا فلاں کو شہادت مبارک ہو، فلاں کو شہادت مبارک ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ خیبر کے اندر مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، وہ چادر اس کے قبر میں آگ بھڑکا رہی ہے، آگ کی ورشا کر رہی ہے۔ امانت کے اندر خیانت، چاہے وہ خیانت اذان کے اندر ہو، چاہے خیانت نماز کے اندر ہو، چاہے خیانت عبادات کے اندر ہو، چاہے خیانت مناکحات کے اندر ہو، چاہے خیانت معاملات کے اندر ہو، چاہے طلاق و خلا کے اندر ہو، یا اور دیگر چیزوں کے اندر خیانت ہو، خیانت خیانت ہے، اور خائنوں کی سزا اللہ کے ہاں بہت خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الشہادۃ تکفر کل ذنب الا الامانہ فیؤتی بالرجل یوم القیامہ وان کان قتل فی سبیل اللہ فیقال ادی امانتک فیقول وانا اودیها وقد ذهبت الدنیا فتمثل له الامانة في قار جہنم فیہوی الیہا فیحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فیہوی الیہا ابد الابد۔ ذکرہ احمد شاکر فی عمدۃ التفسیر وصححہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ شہادت یہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن امانت کے اندر خیانت اتنا بدترین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے گناہ کو شہادت بھی نہیں مٹا پاتی ہے، شہادت بھی نہیں دھو پاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن جو رب کے راستے میں فی سبیل اللہ شہید ہو گیا ہوگا، اس کو سر عام سب کے سامنے لے کر کے آیا جائے گا، پروردگار اس سے کہے گا ادی امانتک، تو اپنی امانت کو لوٹا جس امانت کے اندر تو نے خیانت کی ہے۔ وہ کہے گا پروردگار وانا اودیھا، میں امانت کو کیسے لوٹاؤں، وقد ذهبت الدنیا، اب تو دنیا بھی ختم ہو گئی ہے، دنیا والے بھی نہیں ہیں، اللہ میں امانت کو کہاں سے لوٹاؤں، اللہ میں امانت کہاں لاؤں۔ روایت بتلاتی ہے فتمثل له الامانة في قار جہنم، امانت و جہنم کے گڑھے میں دکھائی جائے گی، آگ کے نیچے اس کی امانت دکھائی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا اگر تو امانت کو جہنم سے نکال کر کے لے آئے گا تو تجھے جہنم سے نجات دے دوں گا۔ آدمی نجات کی خوشی میں جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگائے گا، جہنم کے گڑھے میں کودے گا، آگ کے اندر جھلستے ہوئے وہ امانت کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ لادے گا، کندھے پہ لاد کر کے جہنم کے اوپری حصے پہ آئے گا۔ قریب ہوگا کہ آدمی جہنم سے نکل جائے، امانت دوبارہ پھسل کر کے اس کے کندھے سے پھسل کر کے جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ وہ آدمی امانت کو پکڑنے کے لیے، امانت کو اٹھانے کے لیے جہنم میں دوبارہ کودے گا، جہنم میں چھلانگ لگائے گا، امانت کو اٹھائے گا، کندھے پہ لادے گا، لاد کر اوپر لائے گا، قریب ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل جائے، امانت پھسل جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فیہوی الیہا ابد الابد، وہ ہمیشہ کے لیے ایسا کرتا رہے گا، جہنم میں کودتا رہے گا، امانت اٹھائے گا، کندھے پہ لادے گا، لاد کر جہنم کے اوپر آئے گا، امانت پھسلے گی، دوبارہ پھسل کر جہنم کے اندر چلی جائے گی، دوبارہ کودے گا، امانت کو اٹھائے گا، الی ابد الابدی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خائنوں کی یہی سزا ہوگی۔ پیارے رسول نے بیان فرمایا اگر اس نے ایک سوئی کے اندر بھی خیانت کی ہوگی تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ہم خیانت جیسے
बुरी बला से बचे। आज खियानत तिजारत के बाब में बहुत आम है। जिस तरह से इबादत में लोग खियानत कर रहे हैं, अजान में खियानत हो रही है। जहां पे रसूल मोहतरम के नाम का दरूदो शरीफ नहीं पेश करना होता है, आदमी वहां दरूदो सलाम का नजराना पेश करता है। हजरत बिलाल ने मदीना के अंदर अजान दिया, कभी अजान से पहले हजरत बिलाल ने सलातो सलाम का नजराना नहीं पेश किया। अबू महजूरा ने मक्का के अंदर अजान दिया, अबू महजूरा ने अपनी अजान से पहले सलातो सलाम का नजराना नहीं पेश किया। अब अगर कोई आदमी अजान देने से पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती पर दरूदो सलाम, अकीदत और मोहब्बत में सलातो सलाम का नजराना पेश करता है तो यह अजान के अंदर खियानत है। और ऐसे खाइनों की वही सजा है जो चद्दर चुराने के माल गनीमत में से चद्दर चुराने की सजा है। नमाज के अंदर खयानत यह है कि आदमी बावजू नमाज ना पढ़े, क्योंकि आदमी नापाक हो जाता है तो कौन जानता है? या तो अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है। अब अगर कोई आदमी नापाकी के बाद नमाज पढ़ता है, तहारत का हुसूल नहीं करता है, तो गोया कि ऐसा आदमी नमाज के अंदर भी खयानत कर रहा है। तिजारत के अंदर खयानत यह है कि अगर कोई आपसे मशवरा तलब करे, आपने उसको तिजारत के बाब में अच्छा मशवरा नहीं दिया, ऐसा मशवरा नहीं दिया कि उसका फायदा हो, उल्टा आपने ऐसा मशवरा दे दिया कि आदमी उस डगर पे अगर चले जाए तो उसका खसारा और घाटा हो जाएगा। ऐसा मशवरा देने वाला भी शरीयत के निगाह में खाइन है। और इसी तरह से खियानत यह है कि जो आदमी चावल वगैरह का बिजनेस करता है, चावल में अगर कंकड़ पत्थर मिलाकर बेचता है तो वो भी खियानत करता है। एक बनिया अगर तेल बेचता है, उसके अंदर लिक्विड डालकर बेचता है, तो ये तिजारत के बाद में गिश और धोखा है, ये भी खयानत के कबील से है। कोई पाइप का बिजनेस कर रहा है, 10-20 पाइप के बीच में पुरानी पाइप पर पॉलिश करके नए के बीच में दाखिल करके नए का रेट ले रहा है। ऐसा बिजनेस करने वाला भी शरीयत के निगाह में खाइन है। उसके खयानत के ताल्लुक से उसे पूछा जाएगा। खियानत यह है, नाप तौल में अगर आदमी 10 किलो भंगार को 50 किलो बताता है, ऐसा आदमी भी शरीयत के निगाह में खाइन है। और इसी तरह से सड़ी गली नोट जिसको एक सब्जी वाला भी नहीं पूछता है, 10-20 हजार के गड्डी के बीच में दाखिल करके किसी को अगर उसने उल्लू बना दिया तो यह उल्लू बनाना भी शरीयत के अंदर खियानत है, उसको इसकी खियानत की सजा मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई आदमी मेड इन चाइना की चीज है, उसके ऊपर से स्टिकर, मेड इन चाइना के स्टिकर को निकालकर मेड इन जापान का लोगो और स्टिकर लगा देता है, ऐसा इतर फरोश और ऐसा सामान बेचने वाला भी शरीयत के निगाह में खाइन है और उसको उसकी खयानत की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिलेगी। डॉक्टरों के यहां भी खयानत है। उनकी खयानत यह है कि अगर आदमी एक टेबलेट से सही हो जाए, एक टेबलेट से सेहतमंद हो जाएगा, अब उसके ऊपर अगर डॉक्टर पैसा कमाने की गरज से 10, 20, 50 टेबलेट लिख देता है तो ऐसा डॉक्टर भी शरीयत के निगाह में खाइन है। एक इंजीनियर, बिल्डिंगें बनती हैं, कुछ लोग पैसा दे करके इंजीनियर से साइन करा लेते हैं, जीपी बिल्डिंग है, आप सिग्नेचर कर दीजिए, पास कर दीजिए ताकि हमारा काम आगे बढ़ जाए। ऐसा जो सिविल इंजीनियरिंग करने वाला भी शरीयत की निगाह में खाइन है, उसको उसकी खियानत की सजा मिलेगी। और कोई मजदूर काम कर रहा है, ठेकेदारी या निगहबानी में कोई काम हो रहा है, जहां 50 किलो सलिया की जरूरत है, 5-10 किलो वो बता करके साइड में कर लेता है, ऐसा निगरानी करने वाला भी शरीयत के निगाह में मेरे प्यारे खाइन है। और साथ ही साथ वो शख्स भी खाइन है जो ओहदे के लायक नहीं है और उसके हाथ में ओहदा दे दिया जाए, ये भी खयानत है। मशवरा गलत देना किसी को, ये भी एक तरह की खियानत है। इसी तरह से कोई औरत और बीवी, मियां और बीवी के दरमियान जो बातें हुई हैं, उस बातों को अगर कोई शौहर दूसरों से जाकर के बताता है तो वो भी खयानत है। और औरत जाकर के अगर अपने सहेलियों से बताती है तो वो भी शरीयत के निगाह में खियानत है। जो राज की चीजें हैं उसको राज रहने दिया जाए, जो अमानत है उसमें खयानत ना किया जाए, नाप तौल में कमी ना किया जाए, झूठ ना बोला जाए, खयानत से दूर रहा जाए। ये तिजारत के मतलूबा औसाफ हैं, ये तिजारत के उसूल और जवाबित है। इन जवाबित पे चल करके
ہم اور آپ اپنی تجارت کو حلال بنائیں، ہم اور آپ حرام چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار ہمیں حرام سے بچائے، سود سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیانت سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔